करेगा इंसाफ सच्चा या रब। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा या रब। इंसाफ सच्चा या रब। सच्चाई नाल होंदे, सच्चाई नाल होंदे सच्चाई नाल होंदे यहोवा यारा आए है तक तेरा। तू वास्ते में आगे छाया। तू वास्ते चाहे वसाया जो नाम तेरा सोना ही है कोई जप दे जो नाम तेरा। जो नाम तेरा
प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए ज़बूर 40 गाएंगे। मैं सबर देना लास रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। ओ खतरे दे टोए देखो बयां चों है मैनू कट के ले आया बागी। ओ खतरे दे टोए देखो बयां ले आया बागी। चट्टानों के दर पैर में मुर्गासी कदमा चट्टानों के पैर में मुर्गासी कदमा मैं चाहूंगी कि आप वर्शिप को जारी रखें भाई, आप फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। यीशु नाम अमला तरक जद मिलता तो मनो अमला तरक जद मिलता तो मनो
ਉਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਏ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਏ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੰਦ ਝੂਠ ਤੋਂ ਉਹ ਲੈਂਦਾ ਏ ਬਚਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੰਦ ਝੂਠ ਤੋਂ ਲੈਂਦਾ ਏ ਬਚਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। सुनता है रब सुनता है मेरी दुआ, रब सुनता है, सुनता है रब सुनता है मेरी दुआ, रब सुनता है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਮਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਦਾ ਮਕਾਰੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਨਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ, ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਦੁਆਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਦੀ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਤੇਰਾ ਦੁਆਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੀ ਜਿੱਦੇ ਆਪਣੀ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ, ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਤੇਰਾ ਕੱਢਦਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦਗਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੰਗਦਾ ਦੁਆ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। मैं चाहूंगी कि सिस्टर मारिया हमारे साथ हैं, सिस्टर मारिया और फ्रोबल, मैं चाहूंगी कि वो वर्शिप करें, फिर उसके बाद हम दुआ करते हैं। हालेलुया। मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। हम वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और गीत गाएंगे, मेरे सारे चश्मे तुझ में। मेरे सारे चश्मे तुझ में है, मैं गीत गाऊंगा,
سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا، میں صدا جلال دوں گا، میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا، میں صدا جلال دوں گا، شہر پاک پہاڑ پر ہے، خداوند پاک خدا کا، شہر پاک پہاڑ پر ہے، خداوند پاک خدا کا، بنیاد میری وہاں رکھی ہے، بنیاد میری وہاں رکھی ہے، عجیب کام ہے یہ خوشی کا، عجیب کام ہے یہ خوشی کا، میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا، میں صدا جلال دوں گا، یعقوب کے مسکن سے بہتر سیون میرے خدا کا، یعقوب کے مسکن سے بہتر سیون میرے خدا کا، کیسے بیان کروں میں، کیسے بیان کروں میں، کچھ چاہتا نہیں دنیا کا، کچھ چاہتا نہیں دنیا کا، میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا، میں صدا جلال دوں گا، انسانوں کی عزت سے ذلت ہے مسیح کی بہتر، انسانوں کی عزت سے ذلت ہے مسیح کی بہتر، شاہی شہر میں جاؤں گا، شاہی شہر میں جاؤں گا، فتح دنیا پر میں پا کر، فتح دنیا پر میں پا کر، میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا، سازوں کو بجا کر اپنے خدا کو صدا جلال دوں گا، میں صدا جلال دوں گا، ہاللیلویہ، خدا ان کی تعریف ہو۔ ہلیلویا، میں چاہوں گی کہ آپ ورشپ کو جاری رکھیں۔ ہاللیلویہ، یہوہ میرے خداوند، بزرگ نام تیرا، یہوہ میرے خداوند، بزرگ نام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا، زمین پہ ساری میرے رب ہے چرچام تیرا، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، جلال تیرا فلک پر خدایا قائم ہے، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا، یہ ساری دھرتی تیری ہے، یہ آسمان تیرا،
میرے خداون بزرگ نام تیرا تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو تیرے ہی ہاتھوں نے پیدا کیا ہر ایک شے کو یہ آسماں چاند تارے یہ سب جہان تیرا یہ آسماں چاند تارے یہ سب جہان تیرا یہوہ میرے خداون بزرگ نام تیرا مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے مخالفوں کو دکھائی یوں اپنی قدرت ہے کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا کہ شیر خاروں کے لب سے بہے جلال تیرا یہوہ میرے خداون بزرگ نام تیرا بزرگ نام تیرا بزرگ نام تیرا ہاللویہ ہاللویہ آمین. تو آئیے ہم آپ کے ساتھ فروبل ہے. جی ابھی میرے پاس نہیں ہے ویسے وہ گھر پہ لیکن ابھی پاس نہیں ہے. اچھا وہ میں چاہوں گی کہ دعا کریں سسٹر نصرت دعا کریں پھر اس کے بعد ہم اختتام کی طرف جاتے ہیں. خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئیے ہم خداوند کی شکر گزاری میں اس کے سامنے جھکتے ہیں خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. باپ اسمانی طرح شکر ہو ایسے برخ تا ادونائی الوہین مکرم قدوش 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 ادونائی الوہین خامن شبشم لارد. Blessed are Lord our God, King of the universe, creator of heaven and heavenly Father, we give you thanks and praise in the powerful name of Lord Jesus Christ, who is and who is to come, who is the holy, holy, the Lord Almighty, King of heaven, King of earth, King of glory, King of angels. Thank you, Father, for this wonderful time, this privilege that you have given us in the mighty name of Lord Jesus Christ, so we can approach your throne of grace day and night and every time, every breath of our life, Lord. All the honors, the glories, the praise, Lord Jesus Christ, because there's no other God before you. There's no one like you. There's none beside you who love us so much, Lord. Father, thank you for this wonderful team and thank you for this holy presence here, Lord. Thank you, Holy Spirit, you being present here, Lord, with us, Lord. Jesus, you are present into your church, Lord. We praise and honor and glorify the name of Father, Son, and the Holy Spirit. Father, thank you for all the participants who joined us, Lord. We cover ourselves in the blood of light, Lord Jesus Christ, and whoever not attended us today, Father, wherever they are, we cover them all. We cover everybody's thought, all our family members, everybody's thought. In your blood, O Lord Jesus Christ, and Father, continue to protect us under divine protection as you kept us safe and sound from this deadly pestilence. We have a faith that you will continuously keep us safe and sound from any kind of sickness or diseases, Lord, because this is your promise. Thank you, Father, for everybody's Lord, and we pray your blessing. Continue to pour your spirit out to open our spiritual eyes so we can see you more and more, Lord. Holy Spirit, guide us, lead us out into the Father, into the right path, Father. And once again, Father, thank you for the breath of life. Thank you for your redemptions and thank you for your giving your life for us, Lord, so we can have a life, abundant life, not just a life, abundant life, Father. Thank you all. Thank you all. Thank you, Father. And thank you for this, once again, this moment, this privilege. Thank you for the Holy Sanctuary Ministries, Lord. The platform of the Holy Sanctuary Ministry that you have put onto the earth so your church can gather and worship and glorify your name, Lord, and be blessed. So we be blessed and bless others and bless many, Lord. Let your blessing fall down upon to everybody. Let your mercy fall down upon to everybody's, Lord. We pray for any kind of sickness or diseases be gone in the mighty name of Lord Jesus Christ and continue to be with us, Lord.
so we can walk in the spirit, not with the flesh. Once again, Father, let this day and evening go very blessed and smooth and effective in your holy presence, in the mighty name of Lord Jesus Christ. Amen. आमीन। आइए हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे, फिर उसके बाद हम कलाम के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, तो फिर हम आखिरी दुआ करते हैं। तेरा शुक्र। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। मेरे मददगार ऐ रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। जैसा है मेरे मसीहा का चेहरा, मुझको बना दे तू वैसा। मेरी राहों को छू दे तू, मेरी बातों को छू दे तू, मेरी राहों को छू दे तू, मेरी बातों को छू दे तू। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। पाक रूह मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर। आ आ आ पाक रूह, आ आ आ पाक रूह हो, आ पाक रूह। हालेलुया। खुदावंद तेरी आमीन। हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए। हम सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दूस को देते हैं, क्योंकि वही कुदरत, हशमत और बुजुर्गी के लायक है। मैं चाहूंगी कि हम सब जोरदार तालियां बजाएं खुदावंद के जलाल के लिए। हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें, हम खुदावंद के नाम की ही वर्शिप करें, हम उसी के नाम की वडियाई करें, क्योंकि वही जिंदा खुदा है, वही रश्कों का खुदा है जो हमें संभालता है और हमें नई जिंदगी बख्शता है, हमें हर मुश्किल परेशानी से हमें बचाता है। वो हमारी रहनुमाई करता है और सबसे बढ़कर ये कि उसने हमें अभी तक जिंदों की जमीन पर रखा है। हम सब जानते हैं कि कोरोना में हजारों लाखों की तादाद में लोग जो हैं इस दुनिया से चले गए। कोरोना ने ना तो किसी की उम्र देखी और ना ही किसी का रुतबा देखा। कोरोना ऐसे ऐसे लोगों को भी ले गया जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते कि वो इतनी जल्दी दुनिया से चले जाएंगे। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें इस चीज से बचाया, उसने हमें जो है इसमें से हमें निकाला। और हम सब जानते हैं कि हम इसमें से आगे भी जितनी भी दुनिया में मुश्किलात आने वाली हैं, परेशानियां आने वाली हैं, खुदावंद उसमें भी हमें संभालेगा और हमें निकालेगा। हम आज खास दुआ करेंगे हम उस जंग के लिए
जो यूक्रेन में जारी है, हम उसके लिए दुआ करेंगे, रशिया के लिए हम दुआ करेंगे, क्योंकि ये जो है थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जो है ये जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि हम इस चीज के लिए दुआ करें कि खुदावंद अपने लोगों को बचाए, खुदावंद अपने लोगों पर रहम करे और खुदावंद उनको इस परेशानी से निकाले। तो आइए हम कलाम में से देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 15 बाब उसकी 16 आयत में यूं लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुम्हें दे। यहाँ पर हम देखते हैं कि हम सबका चुना जाना या हम सबका खिदमत में आना जो है वो हमारी अपनी किसी भी लियाकत से नहीं है, हमारी अपनी उसमें कोई भी औकात नहीं है, हमारी अपना उसमें कोई भी हमारी चॉइस नहीं है कि हम ये रास्ता चुना है। हो सकता है कि जब एक इंसान पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो जब बढ़ता है, जब वो होश संभालता है, जब उसको अपनी शख्सियत का एहसास होता है, तो वो इंसान जो है अपने बारे में बड़े बड़े प्लान करता है, बड़े बड़े मंसूबे बांधता है कि मैं ये करूंगा, मैं जिंदगी में ये बनूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, उस तरह से करूंगा। लेकिन हालात उसको बाजू का जो है किसी और डगर पर ले जाते हैं और इंसान बाजुकात ये होता है कि एक ऐसा वक्त आता है कि जब इंसान ठोकरें खाता है, मुश्किलात में फंस जाता है, जब इंसान जिंदगी की ऐसी ऐसी राहों में भटक जाता है और फिर खुदा जो है हमें वापस लेकर आता है। जब हमें वापस लेकर आता है तो फिर खुदा हमें अपने लिए जो है वो चुनता है, क्योंकि हम इस बात का यकीन रखते हैं कि खुदा जो है, जैसे कि खुदा हमेशा अपने लोगों से, अपने नबियों से ये कहता आया है कि मैंने तुझे माँ के बतन से ही चुन लिया। यानी हम सब ये कह सकते हैं कि हमारा चुनाव जो है वो हमारी पैदाइश से पहले ही हो जाता है। खुदा हमें हमारे माँ के बतन में आने से पहले ही हमारी जिंदगी के बारे में सब कुछ लिख देता है। तो हम सब ये अगर हम ये सवाल करें कि क्या जब खुदा हमें माँ के बतन से ही चुन लेता है या माँ हमारी पैदाइश से पहले ही वो हमारी जिंदगी में बड़े बड़े मंसूबे रखता है, तो फिर खुदा हमें भटकने क्यों देता है? हम क्यों इधर उधर हो जाते हैं? हम क्यों जो है खुदा की राहों से भटक जाते हैं? फिर हम वापस पलटते हैं, फिर हम उस मुसरफ बेटे की तरह वापस आते हैं और फिर जो है हम खुदावन की तरफ चलते हैं, उस राह की तरफ चलते हैं जो खुदावन ने हमारे लिए मुकर्रर की है। तो मेरे अजीजों, खुदा हमें सिखाता है, खुदा हमारी तरबियत कर रहा होता है, खुदा हमें जो है हर एक ऐसे माहौल में से गुजारता है और फिर इस माहौल में से गुजार के खुदा हमें सिखाना चाहता है, हमें फिर सोने की तरह कुंदन करता है, फिर हमें वापस उस मकाम में लेकर आता है, फिर हमें वापस अपने घर में लेकर आता है, जैसे वो मुसरफ बेटे को घर में लेकर आता है। जिस तरह से मुसरफ बेटा जो है वो अयाशी करता है, वो सब कुछ अपना जो है खो देता है, ऐशो इशरत में सब कुछ जो है वो अपना आप गवा देता है, फिर वो ऐसी सख्त आजमाइशों में पड़ता है कि उसको खाने के भी लाले पड़ जाते हैं, फिर वो सूरों के साथ जिंदगी गुजारता है और जो है फिर एक दिन उसको एहसास होता है, एक दिन उसकी अकल काम करती है कि मैं जो हूँ अपने बाप के घर जाऊंगा और मेरे बाप के घर में बहुत से नौकर हैं जो इससे भी अच्छी खुराक खाते हैं, तो मैं अपने बाप के घर वापस क्यों ना जाऊं। हम सब की जिंदगियों में भी ऐसा ही होता है कि फिर एक दिन हमें एहसास होता है, जब हमारा वो जो सुखन है वो कंप्लीट हो जाता है, जब वो मुकम्मल हो जाता है, तो खुदा हमें वापस लेकर आता है। जैसे कि हम सब यूसुफ की जिंदगी में से सीखते हैं कि यूसुफ को कहाँ पर बेचा गया, उसके भाइयों ने बेचा उसको और उसके भाइयों से आगे आगे उसको भेजा गया, फिर उसकी बड़ी सख्त आजमाइशें हुई, लेकिन वो फिर भी खुदा के साथ वफादार रहा और खुदा के उस वादे का जो खुदा ने उसके साथ किया था, वो ख्वाब जो खुदा ने उसको दिखाए थे, वो उस पर भरोसा रखता था और उसके इंतजार में वो खुदा के साथ वफादार रहता है। और फिर जब उसका सुखन पूरा हो गया, जब वो अपनी आजमाइश पे पूरा उतर गया, तो खुदा फिर उसको वापस लेकर आया और खुदा ने फिर उसको सरफराजी बख्शी। तो मेरे अजीजों, खुदा इसी तरह से हम सबकी जिंदगियों में भी ऐसे ही करता है। खुदा फिर हमें वापस अपने घर में लेकर आता है, फिर हमें जो है बहाल करता है, फिर हमारे लिए वो सारे मंसूबे जो उसने हमारी जिंदगी में रखे होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम पर अया करता है, हम पर वाजे करता है, फिर हम उन पर चलते हैं। तो यहाँ हम यूहन्ना की इंजील में खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और किस लिए चुना है, किस लिए मुकर्रर किया है? ताकि हम बहुत सा फल लाएं, बहुत सा फल
हम लाएं, और ताकि तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। तो मेरे अजीजों, सबसे पहले जब हमें खुदावन चुनता है तो सबसे जरूरी चीज जो है खुदावन यीशु मसीह जो हमें सिखाते हैं वो ये है कि हमें खुदावन में कायम रहना होता है, हमें खुदावन में अपने आप को जो है कायम रखना होता है। जैसे कि खुदावन यीशु मसीह पीछे इसी बाब की उस आयत में वो कहते हैं कि अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज हम जो कुछ भी मांग रहे हैं, हम खुदावन से मांग रहे हैं, वो खुदावन यकीनन हमें सब कुछ मुहैया करेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम सबका खुदावन यीशु मसीह में कायम रहना बड़ा जरूरी है, ताकि हम बहुत सा फल लाएं। खुदा अपने रास्तबाज बंदों को क्यों चुनता है? खुदा अपने रास्तबाज बंदों को वापस क्यों लेकर आता है? कि वो बस अपनी जिंदगी में आराम और साइश जो खुदावन की तरफ से उसे दिया गया है, वो बस जो है वो एक पुरसकून जिंदगी गुजारे, अपने कंफर्ट जोन में रहे और एक पुरसकून जिंदगी गुजारे और फिर जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से चला जाए। ऐसा नहीं है। इसका मकसद यह है कि खुदा हमें फिर चाहता है कि हम बहुत सा फल भी लाएं। फल लाना बड़ा जरूरी है। अगर हम फल नहीं लाते तो फिर हमारी जिंदगी बेकार है। और जैसे कि ऊपर इसी आयत के ऊपर 6 आयत में यही लिखा है कि अगर हम खुदा यीशु मसीह में कायम नहीं रहते तो वो डाली, जिस तरह से एक सूखी डाली जो फल नहीं लाती, उसको फिर काट डाला जाता है ताकि उसको जो है उसको जलाया जाए और उसको आग के तौर पर इस्तेमाल, आग में जो है खाना पकाने या किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए, यानी उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। जब वो दरख्त में से काट डाली जाती है और वो फल नहीं लाती तो वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। इसी तरह एक इंसान का है कि जब तक वो खुदावंद में कायम नहीं रहता, वो फल नहीं लाता, उसको भी काट डाला जाता है, उसको दुनिया से बुला लिया जाता है, फिर उसकी और फिर आखिरी अदालत ही रह जाती है जो खुदा और उसके सामने जो है वो उसको खड़ा होना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुदावंद में फल लाना जरूरी है। हम इसी तरह से हम पहचाने जाते हैं कि जो डाली फल लाती है, जो अपनी जिंदगी से फल लाती है, जो पाखरू के फल जिसकी जिंदगी में नजर आते हैं और वो बहुत सारी रूहों को बचाने का सबब बनते हैं, तो फिर वो फ्रूटफुल होते हैं। फिर खुदा जो है उस डाली को, उस दरख्त को जो ज्यादा फल लाता है उसको और काटता छांटता है, उसकी आबियारी करता है, उसकी अफजाइश करता है ताकि जो है वो और ज्यादा फल लाए, ताकि वो और ज्यादा अपनी जिंदगी में जो है खुदावंद के लिए काम करे। तो मेरे अजीजों, हमें खुदावंद यीशु मसीह में कायम रहना और बहुत सा फल लाना जरूरी होता है, क्योंकि जैसे कि लिखा कि मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब ही तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। तो मेरे अजीजों, ये जो है ये हम खुदा बाप के नाम को जलाल देते हैं जब हम बहुत सा फल लाते हैं और हमारी जिंदगियों से फिर खुदा बाप के नाम को जलाल मिलता है। और खुदा यीशु मसीह यही चाहते हैं कि हम खुदा बाप के जलाल के लिए काम करें, हमारी जिंदगियों से खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल मिले जब हम खुदा यीशु मसीह में कायम रहते हैं। और खुदा बाप की मर्जी क्या है कि हम बेटे पर ईमान लाएं, हम बेटे में कायम रहें, तभी वो हमारी सारी चीजें, सारी दरख्वास्तें, सारी मुनाजातें, सारी शफायतें जो हम उसकी हुजूरी में पेश करते हैं, हमारा खुदा बाप अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से उन सबको सुनता है, उनको कबूल करता है और हमें जवाब देता है। तो मेरे अजीजों, हम सब जितने भी हैं, हमें खुदावन ने मुकर्रर किया है, जितने भी हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, हम इसलिए जुड़े हुए हैं, हमारा अपना कोई प्लान, अपना कोई मंसूबा नहीं है, हमारी अपनी जात के लिए कुछ नहीं है। हम सब इसलिए खुदावन ने हमें इकट्ठा किया है कि हम बहुत सा फल लाएं, ताकि हम उसके बेटे के वसीला से खुदा बाप के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। तो मेरे अजीजों, हमें इसमें कायम रहना जरूरी है। हम जो हैं इस बात पे ना रहें कि हम जो हैं ये सब कुछ हम अपनी किसी लियाकत से कर रहे हैं, नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि उसने हमें चुना है, क्योंकि हम कमजोर हैं, वो हमें जोर बख्शता है, हम कम अकल हैं, वो हमें हिकमत देता है। हमारी अकल जो है इस बात को समझ नहीं पाती, लेकिन खुदा की हिकमत जो है वो हमें अफजल करती है, वो हमें सरफराजी बख्शती है। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आमीन। तो आइए हम आमीन। खुदा के खादिम हमारे साथ हैं पास्टर फयाज अमीन, हम उनके साथ मिलकर दुआ करते हैं।
اس ساری میٹنگ کے لیے، اور سارے ہمارے ساتھ آج کراچی سے پریئر واریر ہیں، انہوں نے اس سے پہلے دعا کی ہے، ورشپ کی ہے، تو میں چاہوں گی کہ بھائی ان کے لیے بھی دعا کریں، ساری ہماری جو منسٹری کے سارے کام ہیں اس کے لیے بھی دعا کریں، اور ساری ٹیم کے لیے بھی دعا کریں۔ ہم خداوند کے حضور جھکتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، رب الفاظ، آسمانی لشکر کے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج شام خداوند زندگی کے لیے، زندگی کی تمام نعمتوں کے لیے، اور پھر خداوند خاص طور پر دوبارہ اس موقع کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں دیا کہ ہم ہولی سینچری منسٹری کے پلیٹ فارم سے خداوند مذبح سے خداوند تیرے عبادت کر سکے، تیرے نام کو جلال دے سکے، تیرے نام کی عزت حمد و تعریف کر سکے۔ پاک خدا دیکھ خداوند آج تیری خادمہ نے جو کلام سنایا، اس کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتا، ہم نے تیری آواز کو سنا، میں تیرا شکر گزار ہوں۔ پاک خدا دیکھ خداوند ہمیں توفیق دے، ہمیں ہمت دے، یہ فہم سمجھ حکمت دانائی دے کہ ہم تجھ میں قائم رہ سکیں۔ دیکھ خداوند انگور کا حقیقی درخت تو ہی ہے، تو نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ میں انگور کا حقیقی درخت ہوں، جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے اور وہ پھر پھل نہیں لاتی، وہ کاٹی اور آگ میں ڈالی جاتی ہے۔ لیکن خداوند ہم تیرے آگے جھکتے ہیں، تو سے فریاد کرتے ہیں پاک خدا کہ خداوند ہمارے جسم بدن روح جو ہے وہ خداوند تیرے لیے ہوں، تیرے جلال کے لیے ہوں، ہمارا تن من دھن تیرے جلال کے لیے پاک خدا، تاکہ خداوند ہم بہت سارا پھل لانے والے ہوں، تاکہ خداوند اس سے ہم پہچانے جائیں کہ ہم تیرے شاگرد ہیں۔ پاک خدا دیکھ خداوند تو نے حکم دیا ہے کہ آپ ایک دوسرے سے پیار کرو، محبت کرو۔ پاک خدا دیکھ خداوند تو نے ہمیں چنا ہے، یہ کوئی ہماری لیاقت نہیں، ہمارا علم نہیں، ہماری کوئی بڑھوتری نہیں، لیکن این خداوند تیرا فضل ہے، تیرا ترس ہے کہ تو نے ہمیں مواقع فراہم کیے خداوند کہ ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے والے، تیرے نام کی منادی کرنے والے بن سکے۔ اس خوبصورت کلام کے لیے، تیری خادمہ کے لیے میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ پاک خدا اسی طرح دیکھ خداوند جو کراچی سے آج ہمارے ساتھ پریئر واریر ہیں، ہمارے بھائی بہنیں ہیں، ٹیم ہے خداوند، میں ان کے لیے برکت کی دعا کرتا خداوند، انہیں بہت زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کر خداوند۔ تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے تیری پرستش کرے خداوند۔ آج جو دعائیں کی گئیں خداوند ان کو اپنی حضور میں قبول فرما خداوند، آج جو ورشپ کی گئی خداوند اس کو اپنے حضور قبول فرما خداوند، تیرے حضور بخور کی مانند پہنچے خداوند۔ بھائی رشید بٹی کی پوری ٹیم کے لیے خداوند جو آج پریئر واریئرز آئے ہیں خداوند، میں منسٹری میں ان کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور خداوند ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ ان کا دعا کرنا، ان کے گیت ضرور گائے جانے خداوند، ان کے گلوں پر، ان کی آوازوں سازوں پر تیری برکت کو مانگتا ہوں پاک خدا۔ اس طرح تیری بیٹی ماریہ کے لیے دیکھتا ہوں، تیری خادمہ ہے، تیرا کلام سناتی ہے، ورشپ کرتی ہے خداوند، اس کے لیے تیری برکت کو، فروبل کے لیے تیری برکت کو کلیم کرتا ہوں، برکت دینا پاک خدا۔ اور جتنے خادم اس منسٹری سے جڑے ہوئے ہیں خداوند سب کے لیے خداوند میں صحت، تندرستی، عمر کی درازی، پیری سلامتی کو کلیم کرتا ہوں، اور ان کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں۔ جب وہ خدمت کے لیے نکلے خداوند، ان کی حدوں کو یبیس کی حدوں کی طرح پڑا۔ اس طرح میں اپنی چیئر پرسن سسٹر نسرین کے لیے، اس کی ساری خدمت کے لیے، اس کی ساری رویا کے لیے خداوند تیرے پاک ہاتھ کو مانگتا ہوں، تیری حکمت اور دنائی کو مانگتا ہوں، اس کی فیملی کے لیے، اس کے گھرانہ کے لیے پاک خدا تیرے پاک روح کو مانگتا ہوں۔ اس طرح تیری بیٹی، تیری خادمہ سسٹر نصرت بھٹی کے لیے، اس کی بیٹیوں کے لیے، اس کے خاوند کے لیے، اس کے سارے گھرانے کنبہ کے لیے، اس کے سسرال کے لیے بھی خداوند میں تیری برکت کو کلیم کرتا ہوں۔ دیکھ خداوند انکل جی جبکہ خداوند کا فریکچر ہوا تو انہیں پھر اٹھا کھڑا کیا خداوند، وہ ایک رات ہسپتال میں رہے اور خداوند دوبارہ گھر لوٹے خداوند، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پاک خدا۔ دیکھ خداوند جو لوگ آج ہمارے ساتھ میٹنگ میں نہیں آ سکے، ہم ان کے لیے خداوند برکت، صحت اور تندرستی کی دعا کرتے ہیں پاک خدا۔ دیکھ خداوند میں اپنے آپ کے لیے خداوند تیرے آگے جھکتا ہوں خداوند، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں پاک خدا۔ تیرا پاک روح ہم سب میں سمائے، ہمارے سارے گھرانے کو اپنی لپیٹ میں لے پاک خدا، اور جو بھی ہماری فیملی میں تجھ سے دور ہے وہ بھی تیرے نزدیک رہے پاک خدا۔ آنے والے پریئر فیسٹیول کے لیے جو کراچی میں ہونے والا ہے پاک خدا، ہم تیرے ہاتھ کو، تیری مدد کو مانگتے ہیں۔ تو ہر طرح کی مدد، اخراجات میں، انتظامات میں تو اپنے بندوں کو
विजन रोया देना पाक खुदा, ताकि बहुत सारे खादम मिलकर इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर काम करें, और जो लोग खुदा तेरा कलाम सुने वो तुझे अपना निजात दहिंदा, अपना शाफी कबूल करे खुदा। देख खुदा, इसके अलावा जितने लोग हमें प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं उन सब के लिए सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ करते हैं। कल भी हमने दुआ की, हमने तेरी बेटी चंदा जवेद के लिए जो निश्तर के वार्ड नंबर 10 में दाखिल है, तेरी आगे मिन्नत फरियाद करते हैं तो अपनी बेटी को छू खुदा, उसे हील कर, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, उसके बेबी को जिंदगी दे, उसे जिंदगी दे पाक खुदा। और हम शुक्र करते हैं जो भाई लाहौर में कार्डियक में हॉस्पिटल में दाखिल था, दिल वाले अस्पताल में, वो अपने घर आ गया है, हम तेरा शुक्र करते हैं। इसके अलावा खुदा देख, हम तेरे बंदा कैप्टन के लिए जो नबीला का शोहर है खुदा, जिसके डायलिसिस हो रहे हैं खुदा, हम उसके डायलिसिस के लिए खुदा मिन्नत करते हैं, तेरा पाक रूह उनके डायलिसिस करे, तेरा खून उसके गुर्दों को धोए, ताकि वो फिर से असर नौ खुदा उसके गुर्दे हो जाएं और वो असर नौ जिंदगी पाए, एक नई जिंदगी पाए और तेरे नाम की गवाही कायम हो पाक खुदा। देख खुदा, हम यूक्रेन के लिए खुदा और रूस के लिए, जबकि वो जंग की हालत में है, जंग हो रही है, बहुत सारे बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं, बेगुनाह इंसान मारे जा रहे हैं, हम इंसानों के लिए खुदा तेरे हाथ को, तेरी मदद को मांगते हैं। दोनों मुल्कों के मबैन अमन की दुआ करते हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के लिए अमन की दुआ करते हैं, दुनिया में अमन कायम हो खुदा, दुनिया एक बड़ी तबाही से बच सके, जबकि दुनिया जो है इस तरह की सोचो ख्यालों में ये लोग हैं कि खुदा एक तीसरी आलमी जंग दुनिया पर हो पाक खुदा, लेकिन हम तेरे आगे फरियाद करते हैं खुदा, तू दुनिया को ऐसे अजाब से, ऐसे एटमी जंग से, ऐसे थर्ड वर्ल्ड वार से खुदा महफूज कर, इनके दिलों को, सोचों को बदल। हम सदर पुतिन के लिए, इस तरह यूक्रेन के सदर के लिए खुदा उनकी सोचों को तब्दील होने की दुआ करते हैं, आपस में मुज़ाकरात करें, सुलह करें और दुनिया पर अमन हो। हम अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए, हिफाजत निगहबानी के लिए दुआ करते हैं, कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए तेरे हाथ को मांगते हैं, तेरी कौम इसराइल के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं पाक खुदा, शहर यरूशलेम के लिए तेरी सलामती को मांगते हैं पाक खुदा। देख खुदा, जैसा कि सिस्टर ने कहा, इस कोरोना की सिचुएशन में, इस ओमिक्रॉन और मुख्तलिफ वायरसेस में खुदा तूने हमें महफूज रखा, हम जिंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। साइंसदानों के लिए जिन्होंने वैक्सीन बनाई, हम तेरा शुक्र करते हैं, हम वैक्सीनेटेड हैं, हम इस बात के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा। देख खुदावन, मौसम की शिद्दत की वजह से जो बहन भाई, जो रिश्तेदार, जो मोहल्लेदार, या जो भी कोई बीमार हैं, तेरा पाक हाथ, तेरा पाक रूह बढ़े और खुदा उनको सेहत, शिफा और तंदुरुस्ती दे। देख खुदा, तू हमारे साथ हो, होली सेंचुरी मिनिस्ट्री की हद्दों को बढ़ा पाक खुदा, बरकत दे, हम सब के साथ हो, तेरे पाक रूह को मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन। आइए हम सब आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम तेरा पाक माना पाक जाए, माना जाए, तेरी तेरी बादशाही है, बादशाही आए, तेरी तेरी मर्जी मर्जी जैसे जैसे आसमान पर आसमान पूरी पर होती है, होती है, जमीन पर भी हमारे होती रोज की रोटी आज हमें आज दे, में दे, और जिस तरह हम और अपने जितना अपने कर्जदारों को कर्जदारों को माफ, माफ करते तू हैं, भी हमारे माफ कर्ज करते हमें हैं, माफ कर और हमारे हमें कर्ज आजमाइश में आज़माइश में न पड़ने दे, और बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा बादशाह दो तेरा चला है, हमेशा से तेरे। आमीन। आमीन। कलाम में बरकत अदा करेंगे भाई रशीद। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफाकत और शराकत आपसे लेके हमेशा तक तमाम ईमानदारों के साथ कौम बनी इसराइल के साथ, रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ और होली सेंचुरी मिनिस्ट्रीज के साथ अब्दुल्लाबाद तक कायम और दायम है। इबादत हो चुकी, खुदावंद की सलामती आप सबों पर कायम और दायम है। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस के नाम से, आमीन। आमीन।